A little I have fallen in love, a little is remaining, something like that. Okay. Hello Unstopables, welcome back to today's super duper and fantastic practice and learning session of Unstoppable Academy. आज की इस धमाकेदार क्लास में मेरी और आलोक की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. So are you ready, Alok? Yes, sir. Okay, today we are gonna be doing so many great things and it's gonna be really super duper awesome practice session. Would you agree with me? सहमत होते हो? हाँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. Firstly, you have to recite this slogan. I am the best. I am the best. I can do. I can do. If I can do. I can do. So can you. So can you. सर आप तो मेरे साथ ही बोलते तो फिर बोलो. चलो 3 times. Come on, make it I am quick. the best. Yeah. I can do. If I can do, so can you. I am the best. I can do. If I can do, so can you. या बोलिए बोलिए बोलिए. I am the best. I can do. If I can do, so can you. तेजी से और जल्दी से. I am the best. I can do. If I can do, so can you. Louder. अब कितने लोग? और तेजी से बोलो यार. I am the best. I can do. If I can do, so can you. I am unstoppable. 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 Is that clear? चलिए कल का जो आपका सॉन्ग था हिंदी पे नहीं गाएंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा. ओके लेकिन थोड़ा चलता है. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. ये सॉन्ग है, ठीक है ना. हम तो दिल दे ही चुके हैं, बस तेरी हाँ है बाकी. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. क्लियर हो गया? चलिए अब इधर चलते हैं इंग्लिश में. A little I have fallen in love, a little is remaining. Come on, sing. A little have fallen in. A little I have fallen in love. धुन से यार थोड़ा. I little have fallen in love. देखो इधर. A little I have fallen in love. I little I have fallen in love. गाकर बोलना है, गाकर बोलना है. कैसे बोले? घर में प्रैक्टिस करना कर, ठीक है ना. हाँ, वैसे तो मेरी भी आवाज़ नहीं आती लेकिन गाता हूँ. ओके क्योंकि मैं नहीं गाऊँ तो स्टूडेंट्स गाने से रहे. A little I have fallen in love, a little is remaining. ओके देन हम तो दिल दे ही चुके हैं, बस तेरी हाँ है बाकी. तो I've already given my heart, only your yes is remaining. ओके यहाँ पर ध्यान देने से शॉर्ट कर देना. आई हैव को आई कर देना, धुन आ जाएगी. ओके I've already given my heart, only your yes is remaining. कितनी खराब धुन से कोई गाना गाता है. चलिए यू हैव टू प्रैक्टिस दैट. अच्छी धुन आए खराब धुन आए दैट डजंट मैटर. आपको बाहर जाकर भी गाना है ऑन संडे को, सो अच्छे से प्रैक्टिस. इसी गाना. हाँ जी तैयार रहना. Okay. Okay. Now I'm gonna be asking questions. So you have to answer them. So are you ready? Yes, sir. Can you answer the questions? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. मैं जा रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ. I'm going. मैं जा रहा था. I was going. मैं जा रहा हूँगा. I will be going. मेरे पास पैसा है. I have money. तुम्हारे पास क्या है? Do you? तुम्हारे पास क्या है? What do you have? तुम्हारे पास. तुम यहाँ क्यों? What? तुम यहाँ क्यों? Why do I here? तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों हो? हाँ जी. Why is you? Why are you here? Why are you here? Are you? हाँ जी यू के साथ आर लगता है. हाँ. ओके तुम यहाँ क्यों हो? Why are you here? क्या तुम जा रहे हो? Are you going? क्या तुम खा रहे हो? Are you eating? क्या तुम खेल रहे हो? Are you playing? क्या तुम टीवी देख सकते हो? Are you can watching TV? आर यू भी लग Can जाएगा. you watch TV? कैन यू वॉच टीवी. क्या तुम जा सकते हो? Can you go? क्या मुझे जाना चाहिए? Should I go? शुड आई गो. क्या मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए? Should I practice? मैं प्रैक्टिस किया करता था. I used to practice. मुझे जाने दो. Let me go. मुझे खाने दो. मुझे जाने दो. मुझे जाने Let me दो. go. लेट मी गो. एक्चुअली आई विल कीप गेटिंग कॉल्स, सो लेट मी डू वन थिंग. लेट मी पुट माई मोबाइल ऑन एयरप्लेन मोड. It would be a great thing for me as well as for my mobile. Okay, let's go. Come on. मैं जा सकता हूँ. I can go. मैं टीवी देख सकता हूँ. I can watch. मेरे पास पैसा है. I have money. मैं तुम्हें नहीं दूंगा. I don't give you. मैं तुम्हें नहीं दूंगा. I won't give. आई वोंट गिव यू. मुझे जाना है. I have to go. मुझे टीवी देखना I है. have to watch. मुझे टीवी देखना था. I had to watch TV. क्या तुम्हें जाना है? Do you have to go? क्या तुम्हें खाना खाना है? Do you have to eat food? डू यू हैव टू ईट फूड. तुम्हें खाना क्यों खाना है? Why do you have to eat food? किसे खाना खाना है? किसे के लिए हु लगेगा? अब बताइए क्या लगेगा? किसे के लिए तो हुई लगता है. सब्जेक्ट है तो हुम लगेगा, सब्जेक्ट नहीं है तो हु लगेगा. मतलब हु सब्जेक्ट को हटा देगा. ओके किसे खाना खाना है? Who does किसे खाना खाना है? किसे खाना खाना हाँ, है, हाँ. तो हुई लगेगा. पेन देना जरा. किसे खाना खाना है या बनाई. Who does? देखो जब कोई आपका WH वर्ड सब्जेक्ट को हटा देगा ना तो उसे राजा के जैसे ट्रीट करोगे यार. तो whom वो लगेगा. खुद ही सब्जेक्ट है तो हु लगेगा लेकिन डज नहीं लगेगा. हु हैज टू ईट फूड. Who has to eat food? हु किसे खाना खाना है. हु हैज टू ईट फूड. किसे जाना है? Who has to go? हु हैज टू गो. किसे प्रैक्टिस करना है? Who has to practice? किसे डांस करना है? Who has to dance? राम को डांस करना है. Ram has to dance. राम को डांस नहीं करना है. Ram hasn't to. Ram don't. राम Doesn't have. राम डजंट हैव टू डांस. एक सेंटेंस दूंगा उसके 8 बना लोगे. Eight. एक सिंपल सेंटेंस. आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, व्हाई एम आई गोइंग, व्हाई एम आई नॉट गोइंग, हु इज गोइंग, हु इज नॉट गोइंग. ये देखो तुम्हारे पास पैसा है. गो. तुम्हारे पास you have money. हाँ
अब इसमें क्या क्या बड़ी बनाना बड़ी है? आगे क्या क्या बनाना है? बनाइए, नेगेटिव बनाइए, फिर उसका क्वेश्चन बनाइए, फिर WH वर्ड बनाइए। एक अभी बताया था ना तब तो बन आज नहीं पता मेरे को क्या क्या बनाना बनता भी है। दिक्कत है उस बात की सर, यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता, जब बनता है तो फिर बोलो, अदरवाइज बनता ही नहीं है। वो चलिए, अरे उसे हटाओ 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 हटाओ। नहीं नहीं देखो लो। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो, हु गोज, हु डजंट गो। हाँ इन सिंपल वर्ड्स सबसे पहले पॉजिटिव एक बनेगा, बस लिख दीजिए, एक फिर उस हाँ। अरे ऐसे कैसे इसी लिख तरह, दूं, इसी तरह, बहुत इसी होशियार बनते हो। नहीं नहीं एक शब्द ये हाँ एक शब्द, पहले पॉजिटिव बनेगा, फिर उसका नेगेटिव बनेगा, फिर यस और नो वाला क्वेश्चन बनेगा, यस और नो वाला क्वेश्चन, फिर उसका नेगेटिव बनेगा, फिर WH वर्ड वाला क्वेश्चन बनेगा, फिर उसका उसका नेगेटिव negative बनेगा, बनेगा। और फिर हु वाला बनेगा और उसका नेगेटिव बनेगा। समझ आ गया? चलिए लेट्स मूव फर्दर, तुम जा सकते हो। यू कैन गो, हाँ। यू कांट गो, कैन यू गो, कांट यू गो, हु कैन यू गो, व्हाई कैन यू गो, हाँ वाई कैन यू गो, वाई कांट यू गो, हु वाला ना, हाँ। हु कैन गो, हु कांट गो। थोड़ा तेजी से करना। आई कैन Yes, स्पीक इंग्लिश, I can speak English, I can't speak English, can I speak English, can't I speak English, हु लगेगा कि वाई? व्हाई लगेगा, हु तो अरे last यहाँ में लगता देख है। रहा हूँ ना। हाँ, वाई आई कैन स्पीक व्हाई इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, Why can I speak English? Why can't I speak English? Who can I speak English? Who can't I speak देखो English? जब हु लग जाता है तो सब्जेक्ट नहीं लगता, हु सब्जेक्ट को ही हटा देता है, अगर आपको पता हो। हाँ, और इसीलिए हम राजा हु बन की अलग जाता है से- वो। हु की अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके लेट्स मूव फर्दर। तुम खेल रहे हो, You are playing. हाँ, You aren't playing. Are you playing? Aren't you playing? Who? Where है ना? Who? देखो अब अच्छे सुन लो। नहीं, जब मैं बात full करता हूँ तो लिख दीजिए। जस्ट Who? हैंग ऑन। हाँ हाँ। जब मैं बात करता हूँ WH वर्ड्स की, तो यहाँ पर आप व्हाई का यूज करिए, हाउ का यूज करिए, वेयर की यूज करिए, एक ही है। या तो वेन का यूज करिए, एक ही नहीं है, इनमें से किसी का भी यूज हो सकता है। दिक्कत आती है हु में, क्योंकि वो सब्जेक्ट को ही हटा देता है, इसलिए उसके अलग से प्रैक्टिस करते हैं। मैं जब इनमें से किसी भी कोई भी लग गया तो किसी को भी लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से। क्या क्वेश्चन था? तुम खेल रहे हो, Are you शुरू से बताता हूँ। Are you playing? तुम खेल रहे हो, तुम you are playing ना? यू आर प्लेइंग, या You are playing. You aren't playing. Are you playing? Aren't you playing? तुम क्यों खेल रहे हो? Why are you playing? Why aren't you playing? Who are you playing? हु इज प्लेइंग, हु के साथ यू कैसे हाँ लग गया? सिमिलर लगता है ना हाँ यार। चलिए, Who is playing? Who isn't playing? कल मुझे इसमें परफेक्शन चाहिए। Perfection कल आप अभी भी परफेक्शन, अरे नहीं है, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, व्हाई एम आई गोइंग, व्हाई एम आई नॉट गोइंग, हु इज गोइंग, हु इज नॉट गोइंग, बोल सकते हो हाँ मेरी तरह से। हाँ चलो, यू हैव मनी, सॉरी यू हैव टू गो, इसको बस हटा दो। यू हैव टू गो, बोलो। तुम्हें जाना है। You have to go. You have to go. You you don't have to go. Do you have to go? Don't you have to go? तुम क्यों जाते हो? Why do you have to go? Why don't you have to go? Who does लगेगा नहीं? Who have to go? Who has to go, who has to go? और who doesn't have to go। Who doesn't have to go? तो समझ गए कैसे बोलना है? हाँ। अब बोलना है कैसे? You have to go, you don't have to go, do you have to go, don't you have to go, why do you have to go, why don't you have to go, who has to go and who doesn't have to go। Who doesn't? जब आप बोलना चालू कर दो तो बीच में जब Negative में लगेगा वो। या जब आपने शुरू किया और ख़त्म किया, आराम से बोलो चलेगा, लेकिन बीच में कोई अटके नहीं, तब मानूंगा कि आप लेवल पे आ गए सर। एक बार भी थोड़ा सा भी अटके ना तो लटके, अटकना नहीं। अटके तो लटके, सिंपल सी बात है। धीरे धीरे अच्छे से बोलो। प्रैक्टिस करना, अब धीरे से भी नहीं बोलना है, हाँ। बार बार प्रैक्टिस करके धीरे से बोलोगे। नहीं। बहुत बढ़िया, सोच समझ के बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना? तो इन सबके अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं खेल रहा हूँ जबकि मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वह खेल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ। I'm studying. आई एम स्टडीइंग जबकि वह पढ़ रहा है, सॉरी जबकि वह खेल रहा है। जबकि वह खेल रहा है ना। या और जबकि वेयर एज वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं जा सकता हूँ जबकि तुम नहीं जा सकते हो। आई कैन गो वेयर एज यू कांट गो। वेयर एज यू कांट गो, मेरे पास पैसा है जबकि तुम्हारे पास पैसा नहीं आई है। हैव मनी वेयर एज यू डोंट हैव टू मनी। आई हैव मनी वेयर एज यू डोंट हैव मनी, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जबकि तुम सुबह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आई हैव बीन, यही लगे। आई हैव बीन, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग वेयर एज तुम सुबह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हाँ, यू डजंट यू हैवंट बीन, यू हैवंट बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। यू हैवंट बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हें जानता हूँ जबकि तुम मुझे नहीं जानते हो। आई नो यू वेयर एज जबकि तुम मुझे नहीं जानते हो। यू डोंट नो मी। ओके, आई नो यू वेयर एज यू डोंट नो मी, मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ जबकि तुम मुझे नहीं जानते, 10 साल से नहीं जानते हो। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ जबकि तुम मुझे 10 साल से नहीं जानते हो। वाला क्वेश्चन सर। अरे बाबा टाइम से आ गया, परफेक्ट में जाएगा। हाँ। 10 साल से आ गया, परफेक्ट में जाकर बनेगा। मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ। I have been knowing you। वर्ब नो है, आई हैव नोन यू। आई
हैव known you. कोई टेंशन नहीं लेगा। देखो नहीं। मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ, समय आ गया परफेक्ट के अंदर बनेगा, वर्ब क्या है? नो है। No है। तो आई हैव नोन यू I have known you for 10 years. आई हैव नोन यू For फॉर 10 10 years. मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ। ऐसे मैं तुम्हें जब 10 साल से जानता था, आई हैव I नोन had यू। known you. मैं तुम्हें 10 साल से जानूंगा, आई I विल will हैव have known you. आई विल हैव नोन यू फॉर 10 ईयर्स। इज दैट क्लियर? चलिए, मुझे सर्दी है, I have a cold. मुझे सर्दी है जबकि तुम्हें सर्दी नहीं है। I have a cold, whereas you don't have a cold. आई हैव अ कोल्ड वेयर एज यू डोंट हैव अ कोल्ड। मुझे सर्दी थी लेकिन तुम्हें सर्दी नहीं थी। I had a cold, whereas you didn't have. You didn't to have cold. you didn't have a cold. You didn't Among us में- have a cold. ओके, मैं जाया करता था। I used to go. मैं नहीं जाया करता था। I didn't used to तुम go. कहाँ खेला करते थे? तुम कहाँ? Where did you used to play? क्या मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए था? Should I have practiced? शुड आई हैव प्रैक्टिस? क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था? Should I have gone there? तुम्हें जाना ही चाहिए। You must go. तुम्हें जाना ही चाहिए। You should go. तुम्हें जाना ही चाहिए। You should have gone. यू शुड हैव टू गो। बताया था ही चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। लेकिन तुम्हें जाना ही चाहिए। Should have to मस्ट के तो ऐसे ही मतलब निकलता है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। यू शुड हैव टू गो। यू Should have. शुड हैव टू गो। शुड हैव टू का मतलब होता है ही चाहिए। ओके, शुड हैव। ही चाहिए। हाँ, मस्ट भी वही मतलब निकालता है। इसका मतलब नहीं कि इसमें कोई अंतर है, लेकिन लगा सकते हो, थोड़ा कहने का तरीका अलग हो जाएगा। यू शुड हैव टू गो। ओके, मेरे पास पैसा है, I have money. तुम्हारे पास पैसा नहीं You है, don't have मैं जा money. सकता हूँ। I can go. तुम्हें सुबह उठना चाहिए। तुम्हें सुबह उठना. You should get up early in the morning. तुम्हें सुबह उठना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। होल्ड इट प्लीज। ओके, इट्स गोना बी क्वाइटर। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। You should get up early in the यू शुड गेट अप morning. अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। I should get up early in the morning. आई शुड Get up गेट अप अर्ली in the morning. इन द मॉर्निंग। इसको क्यों लिखी फिर? अभी बताता हूँ। ओके, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। ओके, ताकि मैं वॉक के लिए जा सकूँ। ताकि हो जाएगा. मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि मैं वॉक के लिए जा सकूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हो गया, ताकि मैं वॉक के लिए जा सकूँ। ताकि फॉर व्हाट? सो दैट का यूज कल आपने देखा था। ओके, प्रैक्टिस. कल अगर जो बताया तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हाँ ओके, और आपने साथ उतनी हिसाब से प्रैक्टिस करके नहीं भूल गया क्या? हाँ. अच्छे से प्रैक्टिस करके आप हाँ, भैया। ठीक है। ओके, टॉपिक सवाल है, क्योंकि जो आज बताने वाला उसी के बेस पे बताने वाला हूँ सर। अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे I सुबह should जल्दी get उठना up चाहिए। सो दैट, ताकि। अब सो दैट के बगल में किसका यूज होता है? हाँ. हाँ, अब बताओ। क्या सो दैट? सो दैट के बगल में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है? फिर भी इसमें बहुत बढ़िया। मे का यूज होगा या तो कैन का यूज होगा प्रेजेंट में, और यहीं पर पास्ट में इसका माइट हो जाएगा और कुड हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो पीछे जाकर देख लेना, ये सारा का सारा यहाँ पर वही लिखा। कल मैंने बताया था सबको और आपने मिस कर दिया। चलो, मिस कहाँ किया? लिखा तो है. अरे आपने पढ़ना मिस मतलब अटेंड नहीं किया. मैंने नहीं, अटेंड किया था. मिस कर दिया मतलब प्रैक्टिस करना भूल गए। हाँ, भूल नहीं किया, मेरे को टाइम नहीं मिला. अच्छा, चलो समझ सकता हूँ। पेपर था 5 Okay. बजे, मम्मी लोग थी नहीं. आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। सो दैट, ताकि। शुड के बगल में हमेशा मे का यूज करोगे तो कैन का यूज करो। हेलो ब्रदर, कैन यू लोवर द वॉल्यूम प्लीज? क्लियर ना? धीम तो so that हो गया। गया. अब देखो, ताकि मैं वॉक के लिए जा सकूँ। सो दैट आई मे गो फॉर अ वॉक। आई मे गो फॉर अ वॉक. ये तो कैन का भी यूज कर सकते हो। आई मे गो फॉर अ उसमें तो सकता आ जाएगा ना कैन में. मैं जा सकूँ, वही मतलब निकलता है। क्लियर है ना? तो अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैन का यूज हो जाता है, और सिंपल शकू बोल रहे हो तो मे का यूज हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट आई मे गो फॉर अ वॉक। मुझे वॉक के लिए जाना चाहिए ताकि मैं हेल्दी रह सकूँ। आई मे गो फॉर अ वॉक. आई शुड चाहिए मुझे तो वॉक अभी के लिए यार जाना पूछे थे चाहिए। ना. अच्छे से सुन लो बाबा, मैं बोल क्या रहा हूँ एग्जैक्टली। आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह उठना चाहिए ताकि मैं वॉक के लिए जा सकूँ। हाँ, आई मे अब गो मुझे फॉर अ वॉक वॉक. के लिए जाना चाहिए। अब सेम वर्ब इधर यूज होगी। हाँ, इधर वाला शुड होगा, उधर वाला मे होगा, इतना ध्यान रख लो। आई शुड गो फॉर फॉर वॉक. अ वॉक। मुझे वॉक के लिए जाना चाहिए ताकि मैं हेल्दी रह सकूँ। सो दैट. So that हल्दी रहने के लिए क्या होता आई मे है? आई मे लिव हेल्थी। लिव मतलब होता है आई मे लिव हेल्थी। ओके, HEALTH। तो लिव मतलब तो रहना भी होता है. लिव मतलब होता है रहना, और आप हेल्थी स्वस्थ रहने की ही बात कर रहे हो। ओके, ताकि मैं हेल्थी रह सकूं। समझ गए? चलिए, मुझे हेल्थी रहना चाहिए ताकि मैं अनस्टॉपेबल एकेडमी आई शुड लिव हेल्थी. आई शुड लिव हेल्दी. हेल्थी। इसे हेल्थी में लिखा है। हेल्दी बोलते हैं ना. बेट हेल्दी. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाकर देखो। हेल्थी नहीं बोलते हैं उसको. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाकर देखो। ओके, बाय द वे इसकी जो ऑफिशियल प्रोनाउंसिएशन दैट इज हेल्थी।
हेल्थी है सर। कोई नहीं बोलता है। बोलते नहीं तो क्या फर्क था, पड़ता था, है, आया वो है तो है ना, सच तो सच है ना। फिर भी कंफ्यूजन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाकर देख लेना, वो तो रिलायबल है ना, उस पर तो भरोसा कर सकते हो। ओके, आई शुड लिव हेल्थी, मुझे हेल्थी रहना चाहिए, सो दैट ताकि मैं अनस्टॉपेबल एकेडमी जा सकूं, सो दैट I could सर अभी इसमें जा सर, सकूं आ गया जा ना? सकूं, प्रेजेंट की बात कर रहे हो ना। हाँ ओके, तो प्रेजेंट में मे लगेगा तो कैन लगेगा, पास्ट में माइट और कुड लगेगा। सकूं तो पास्ट में चला गया। का पास्ट में कैसे चला गया? मैं अनस्टॉपेबल सकूं। एकेडमी जा सकूं, पास्ट की बात कर रहे हो कि अभी की बात कर रहे हो? मैं जा सकूं, मुझे हेल्थी रहना चाहिए हाँ। ताकि मैं अनस्टॉपेबल एकेडमी जा सकूं, हाँ। अभी की बात I may have to सो go। दैट आई मे गो टू यूएसए। यूएसए मतलब अनस्टॉपेबल Unstoppable एकेडमी, Academy। जहाँ पर यूएस का मतलब होता है अनस्टॉपेबल, का मतलब होता है एकेडमी। क्लियर है? तो आई शुड लिव हेल्थी, आई हैव अ कोल्ड यार, चलिए कोई नहीं। आई शुड लिव हेल्थी, मुझे हेल्थी रहना चाहिए, सो दैट आई मे गो टू यूएसए, ताकि मैं यूएसए जा सकूं, मतलब अनस्टॉपेबल एकेडमी जा सकूं। चलिए, मुझे अनस्टॉपेबल एकेडमी जाना चाहिए ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूं। I should go to USA आई so that I learn English। I may learn I English। should go to USA so that I may learn English। I may learn English। इजी है, बहुत सही है। मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, I should learn English I so that आगे should, ताकि मैं एक जॉब पा सकूं। आई शुड पाने के लिए क्या बोल रहे Get हैं? I am able to। गेट का मतलब वो तो एक्शन का पाना, मैं चल पाता हूँ, मैं खा पाता हूँ, यहाँ पर जॉब पाने की बात I है। am able। आई कैन, आई मे गेट, आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, सो दैट आई मे गेट अ जॉब, आई मे पाने के लिए गेट लगता है। हाँ गेट गेट गॉट गेटिंग गेट। मुझे एक जॉब मिलना चाहिए, I should get मुझे एक जॉब पाना चाहिए, आई शुड गेट अ जॉब, आई शुड get a job so that जॉब, sir। ताकि जस्ट मिनट, कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मेरी एक जॉब लगनी चाहिए ताकि मेरी शादी हो सके। ये क्या बोल रहे हैं? या आई शुड गेट अ जॉब सो दैट आई तुझे जॉब लगने से इसमें क्या मैं पैसा कमा सकूं, मैं पैसा कमा सकूं, आई मे अर्न मनी, आई मे अर्न मनी। मैं पैसा कमा सकूं, मुझे पैसा कमाना चाहिए, I should earn money। आई शुड अर्न मनी। अब यहाँ से अब शादी होगी आपकी, सो दैट मुझे पैसा कमाना चाहिए, सो दैट थोड़ा धीरे बोलिए ना, ये वाला शब्द ही इतना अच्छा है कि ओके चलो, मुझे पैसा कमाना चाहिए ताकि मैं अमीर बन सकूं, सो दैट आई मे बी, क्या I may be आई मे बिकम ही लगा सकते हो, आई मे बिकम रिच, rich। आई मे बिकम रिच। मुझे अमीर बनना चाहिए, I should become rich। आई शुड Become बिकम rich so that रिच, ताकि सो दैट अच्छी खासी कहानी बनने वाली है, सो दैट आई पैसेज बना देंगे मैं क्या? ताकि मैं एक लड़की ढूंढ सकूं, ये आई क्या बोल सर, शादी के पीछे पड़े हैं। आई मे फाइंड अ गर्ल, मुझे फाइंड का मतलब सॉल्व होता है। ढूंढना, जब पैसे होगे तभी तो लड़की ढूंढोगे ना। फाइंड मतलब पाना, आई मे गेट अ गर्ल, तो गेट नहीं कहते, फाइंड मतलब आई मे फाइंड अ गर्ल, मैं एक लड़की ढूंढ सकूं, पैसे से ही लड़की ढूंढी जाती है। चलिए, मुझे एक लड़की ढूंढना चाहिए ताकि मैं शादी कर सकूं, I should find a girl so that मैं शादी I should कर सकूं। फाइंड I may be आई मे गेट मैरिड, I may get married। ओके आई शुड फाइंड अ गर्ल सो दैट Get married। आई मे Get गेट मैरिड, ओके मुझे शादी कर लेनी चाहिए, सर शादी के पीछे मुझे शादी कर लेनी चाहिए, आई शुड गेट मैरिड, कर लेनी चाहिए, करवा लेनी चाहिए, आई शुड गेट मैरिड सो दैट, ताकि मुझे शादी कर लेनी चाहिए ताकि मैं ताकि मैं खुश रह सकूं, सर शादी करके खुश रहते हैं। अरे लिखो, सो दैट आई मे बी हैप्पी, आई मे बी हैप्पी। हैप्पी, ओके और मुझे खुश रहना चाहिए, आई शुड मे हैप्पी। आई शुड बी हैप्पी, आगे चल के इसको और अच्छा बता दूंगा, अभी तो स्टार्टिंग है, आई शुड बी हैप्पी, मतलब ये इतना सब है, इतना बना दूंगा, मतलब फिर आपको ध्यान देना है कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, बोलते चलो, आई शुड बी हैप्पी। ये इसको सुनेंगे फिर? हाँ जी, एग्जाम्पल दे रहे हैं। आई शुड बी हैप्पी, मुझे खुश होना चाहिए, सो दैट आई मे, मैं दूसरों को खुश कर सकूं, आई मे मेक अदर्स हैप्पी, आई मे मेक अदर्स हैप्पी, ठीक है ना? इज इट क्लियर? अब देखो क्या क्या कर रहे हो। सबसे पहले सुबह उठते हो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह से अभी पहले टॉपिक को क्लियर करना है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो गए, सुबह उठ गए, फिर उठने के बाद उठते क्या हो,
वॉक के लिए जाने के लिए, वॉक। फिर वॉक को जाओगे तो क्या होगा, वॉक के लिए जाओगे तो हेल्थी रहोगे। हेल्दी बोलते हैं सर। चलो मैं बोल लेना हेल्दी, हेल्थी। ओके, अगर स्वस्थ रहोगे तो क्या करोगे, अनस्टॉपेबल एकेडमी जाओगे। अनस्टॉपेबल एकेडमी जाओगे तो क्या करोगे, इंग्लिश सीखोगे। इंग्लिश सीखोगे तो क्या होगा, जॉब मिलेगी। बोल पाओगे तब ना इंग्लिश जॉब मिलेगी। चलो उसको भी ऐड कर देंगे बाद में, लेकिन अभी जॉब मिलेगी, गेट अ जॉब। जॉब लोगे तो क्या होगा, पैसा कमाओगे, अर्न मनी। पैसा कमाओगे तो क्या होगा, लड़की ढूंढ लोगे, फाइंड अ गर्ल। अच्छा, लड़की ढूंढ लोगे तो क्या होगा, शादी कर लोगे, ऊपर लिख देते हैं सर। गेटिंग मैरिड, शादी हो जाएगी आपकी। ओके, शादी कर लोगे तो क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे, बी हैप्पी। खत्म। और खुश हो जाओगे तो क्या होगा, दूसरों को खुश कर दोगे तो मेक अदर्स हैप्पी। दूसरों कैसे करेंगे, खुद हंसे हैं तो। मैं खुश हूँ तभी तो आपको अभी गुस्सा होकर हेलो चल बैठ, प्रैक्टिस करना है, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे, हो जाएगा नहीं, नहीं आएगा। तो खुश रहोगे तभी तो दूसरों को खुश करोगे, अदर्स हैप्पी। समझ गए। अब इसकी प्रैक्टिस करके आना, क्लास से शुरू होगा, हो गए तो बन जाएगा। बन जाएगा ना, ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए, बन जाएगा। हाँ, ठीक है ना, तो बन तो इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन बाय द वे, लेट मी चेक। स्टिल वी हैव नियरली 12 मिनट्स और समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड करेंगे वीडियो वीडियो तो रिकॉर्ड ही हो रहा है सर, मैं जा सकता हूँ, आई कैन, मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो। मुझे पता है तुम क्या खा रहे हो, आई नो वेयर यू ईट फूड। मुझे पता है तुम कहाँ नहीं खा रहे, तुम क्या खा रहे हो, वेयर व्हाट यू आर ईटिंग यार। व्हाट यू, क्यों नहीं अच्छे से प्रैक्टिस करते, जल्दी अटक जाते हो। क्या सर, सिर्फ वेयर तो बस लगा रहा था ना मैं। हाँ सर। व्हाट तो सही है। सारे के सारे कमरे में अंधेरे कर दिए सर, मैंने स्विच ऑफ तो बस किया है सर, अंधेरा तो अपने आप हो गया, मीनिंग सारे के सारे सेटिंग्स चेंज हो गई। चलिए कोई, मुझे पता है तुम क्या खा रहे हो, आई नो तुम क्या खा रहे हो, मुझे पता है तुम क्या खा रहे हो, यू ईट फूड। आई नो व्हाट यू आर ईटिंग। हैं, मुझे पता है, आई नो जो तुम खा रहे हो, व्हाट यू आर ईटिंग, या तो तुम क्या खा रहे हो, रहे हो। व्हाट यू आर ईटिंग। आई नो व्हाट यू आर ईटिंग, आई नो व्हाट यू आर ईटिंग। मैं चाहता हूँ कि अगर आप जिस लेवल पे आज हो उस लेवल से बेटर कर लो, उसी लेवल पे मिले तो गड़बड़ होगा। अगर आप सर मैं अच्छा तो बोलता हूँ ना, तो मुझे नहीं चाहिए आपका अच्छा, उससे भी जितना अच्छा, जितना अच्छा बोलते हो उससे अच्छा कर चाहिए, बेस्ट करना है, उससे बेटर करना है। इतना सा अच्छा हो लेकिन हो, ठीक है ना, जैसे आप कल अटकते तो वैसे अटके नहीं चलेगा। चलिए, आई नो मुझे पता है, व्हाट यू आर डूइंग तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, आई नो वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। मुझे पता है तुम कैसे जा रहे हो, आई नो हाउ यू आर गोइंग। मुझे पता है तुम कैसे जा रहे हो, मुझे पता है तुम क्यों जा रहे हो, आई नो व्हाई यू आर गोइंग। मुझे पता है तुम किसके साथ जा रहे हो, आई नो विद बाय होम यू आर गोइंग, विद हू आर यू गोइंग। क्लियर है। मुझे पता है तुम कहाँ हो, आई नो वेयर यू टू गो। मुझे पता है तुम कहाँ हो, आई नो तुम कहाँ हो, कहाँ हो, वेयर आई नो वेयर यू आर, वेयर यू आर। जब कभी भी WH वर्ड बीच में आता है तो हेल्प मी को भगा देगा। आई नो वेयर यू आर एज आई मीन रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। आई नो वेयर यू आर ज़्यादा ग्रामर में नहीं जाना है, सिंपली हमें याद करना है, याद नहीं करना, सॉरी याद नहीं समझ। चलिए, मुझे पता है, आई नो मुझे क्या तुम्हें पता है, डू यू नो। इसी को बनाओ जरा सभी में, देखो मुझे पता है, मुझे नहीं पता, क्या मुझे पता है, क्या मुझे नहीं पता, आगे बढ़ो। हाँ, आई नो डू यू नो, आई नो आई डोंट नो, डू यू नो, डोंट यू नो। हाँ, चलो इसको लिख देता हूँ एक का, आई नो। अब इसी तरह सभी की प्रैक्टिस करके आ रहा है, आई नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, डू आई नो, डोंट आई नो, डू आई नो, वाई डू आई नो, वाई डोंट आई नो। गुस्सा कर रहे हो क्या सर जी? नो सर, हु डोंट आई नो, हु डू आई, हु डज। अच्छा, वाई डू आई नो, Why do I know? आई नो, वाई डोंट आई नो, वाई डोंट आई नो, वाई डोंट, हु does? नो। अच्छा देख रहा, हु सब्जेक्ट को ही हटा देगा सर जी, समझ लो, हु सब्जेक्ट को हटा देता है, कोई भी WH वर्ड सब्जेक्ट को ही हटा देता है, सब राजा बन जाता है। Who know you? हु नोज, नोज, और सारे के सारे WH वर्ड सिंगुलर होते हैं। हु नोज, अगर उनका प्लूरल बना सकते हो, हु आर लगा सकते हो, और हु डजंट नो, हु डजंट, हु नोज एंड हु डजंट नो। समझ गया क्या? इस तरीके से आपको सारी प्रैक्टिस करना कर लोगे? हाँ। यस नो, हाँ। यस नो, यस सर, यस नो, यस सर। ओके दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता है। अरे चलिए आगे बढ़िए, स्टोरी। पैसा होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता है। पैसा होने के बाद होने के, पैसा होने के बावजूद वह खर्च नहीं करता है। होने के, पैसा होने के बाद, पैसा होने के बावजूद मतलब मनी इज बीइंग, अब अटक गए ना,
मैंने होने कहा के था लिए तो बी लगता है, होने के लिए भी लगे, लेकिन के बावजूद के लिए क्या लगाओगे? तो इंस्पाइट डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, हैविंग मनी, जाने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ गोइंग, खाने के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ ईटिंग, इंग्लिश बोलने के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ स्पीकिंग, जहाँ पर इंस्पाइट यूज करते हो वहाँ पर डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हो। हाँ, इंस्पाइट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो पैसा होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता है, इंस्पाइट ऑफ हैविंग मनी, वह खर्च नहीं करता है, वह खर्च नहीं करता है। ही डजंट स्पेंड मनी, ही डजंट स्पेंड, पैसा होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता है, इंस्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डजंट स्पेंड। ओके, टीवी होने के बावजूद भी हम टीवी नहीं देखते हैं, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ टीवी, हम टीवी नहीं देखते, वी डोंट वॉच टीवी। ओके, एक पेन होने के बावजूद भी मैं कभी नहीं लिखता हूँ, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ पेन, या मैं कभी नहीं लिखता कभी हूँ, नहीं लिखता हूँ। आई विल नेवर, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ पेन आई नेवर राइट, आई नेवर राइट, नेवर मतलब होता है कभी नहीं करता। इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ पेन आई नेवर राइट। ओके, सर्दी होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ कोल्ड, वह स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया, इंस्पाइट ऑफ, मेहनत को क्या बोलते हैं, वर्क हार्ड, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, वह स्कूल गया, हाँ, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही वेंट टू स्कूल, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बावजूद भी ही वेंट टू स्कूल। क्लियर है ना? अब देखो, या तो आप डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हो, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। ओके, मेरा भाई होने के बावजूद तुम मेरी मदद नहीं करते हो, इंस्पाइट ऑफ माई ब्रदर, मेरा भाई होने के बावजूद तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई ब्रदर, इंस्पाइट ऑफ बीइंग माई मदर, जहाँ पर आप कुछ होते हो वहाँ पर भी लगता है, बीइंग माई ब्रदर, या मेरा भाई होने के बावजूद भी तुम मेरी मदद नहीं इंस्पाइट ऑफ करते हो, बीइंग माई ब्रदर, या तुम मेरी मदद नहीं तुम मेरी करते, मदद नहीं करते हो, यू डोंट हेल्प मी, यू डोंट हेल्प मी। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी तुम पैसे नहीं कमाते हो, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ मनी, हैविंग अ डॉक्टर, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ डॉक्टर, तो एक डॉक्टर होने के बावजूद भी, हाँ, एक डॉक्टर होने के बावजूद भी, होने के बावजूद, सेंटेंसेस का टू बी का टू हैव का, टू हैव का, होने के लिए, आपके पास डॉक्टर है, नहीं वो बी टू बी तो डॉक्टर होने के बावजूद भी तुम इंस्पाइट ऑफ पैसा नहीं बीइंग कमाते अ डॉक्टर, या तुम पैसा कमाने को क्या बोलते हैं, अर्न You don't earn money. यू डोंट अर्न मनी। ओके, एक मोबाइल होने के बावजूद भी तुम वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हो, होने, यू इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ मोबाइल, आप मोबाइल हो, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ मोबाइल के इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल, कौन सा सही है? इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल, चलिए आगे, तुम वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हो, यू डोंट रिकॉर्ड वीडियो विद वीडियो द रिकॉर्ड, यू डोंट रिकॉर्ड द वीडियो, यू डोंट रिकॉर्ड अ वीडियो। मोबाइल होने के बावजूद भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, किया जाता है, मोबाइल होने के बावजूद भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वो हाँ, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल, वीडियो इज नॉट रिकॉर्डेड, वीडियो इज नॉट रिकॉर्डेड, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल, वीडियो इज वीडियो इज नॉट रिकॉर्डेड। वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता? वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता है? वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता? वाई वीडियो रिकॉर्ड, देखो वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो इज रिकॉर्डेड, वीडियो इज रिकॉर्डेड, वीडियो कब बोल यार, वीडियो इज रिकॉर्डेड, वीडियो इज रिकॉर्डेड, वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो इजंट रिकॉर्डेड। जैसे आप एक्टिव वॉइस में आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी बनेंगे। तो वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता है? वाई इजंट, इस बार आ जाएगा, वाई इजंट वीडियो रिकॉर्डेड, समझ में आ गया? वाई इजंट वीडियो इसका लिख दीजिए एग्जांपल रिकॉर्डेड। इनकी भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। सपोज इसके सारे ही लिख देते हैं, यहाँ से आपके चालू हो गए। वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो इज रिकॉर्डेड, वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो डजंट, वीडियो इजंट रिकॉर्डेड, वीडियो इजंट रिकॉर्ड, वीडियो इजंट रिकॉर्डेड, वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। क्या वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है? इज वीडियो रिकॉर्डेड, क्या वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है? इज वीडियो रिकॉर्डेड। क्या वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया जाता है? इजंट वीडियो रिकॉर्डेड, वीडियो रिकॉर्डेड। वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? Why is video रिकॉर्डेड, Why is वीडियो रिकॉर्डेड। पैसिव वॉइस कैसे प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पर थोड़ा अटकते हो। Why is वीडियो रिकॉर्डेड, वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता? Why isn't वीडियो रिकॉर्डेड। जो आप
पैसिव वॉइस सॉरी एक्टिव वॉइस में हु लगाते थे ना, हाँ। वहाँ पर इसमें व्हाट लगाते थे। क्या लगाते थे? व्हाट लगाते थे। क्या रिकॉर्ड किया जाता है? व्हाट इज रिकॉर्डेड। व्हाट इज रिकॉर्डेड। व्हाट इज, यहाँ पर किसी चीज़ की बात करें तो व्हाट लगेगा, किसी आदमी की बात करें तो हुम लगेगा। ये तो सब बाय हुम किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, बाय हुम किसके द्वारा, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ओके, व्हाट इज रिकॉर्डेड देखेंगे फिर आगे चल के उसको भी। व्हाट इज रिकॉर्डेड और क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर है ना? व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड। इस तरीके से आप सारे की सारी प्रैक्टिस करना है। हालांकि मेरे पास पैसा है, मैं खर्च नहीं करता। हालांकि मेरे पास पैसा है। या ऑल थ्रो बस बोलते हैं, दो नहीं है वो, दो ऑल दो इवन इन दिनों में से एक बोल सकते हाँ, हैं। हालांकि मेरे पास पैसा है, मैं खर्च नहीं करता। दो आई हैव मनी आई डोंट स्पेंड मनी। दो आई हैव मनी आई डोंट स्पेंड। दो आई हैव मनी आई डोंट स्पेंड। ओके, हालांकि मैं लेट था लेकिन मेरे टीचर ने मुझे नहीं डांटा। दो मैं लेट, हालांकि मैं लेट था, हालांकि मैं लेट था, late. आई वॉज लेट। मैं लेट था, कुछ था, लेट था। हाँ, आई वॉज लेट। हालांकि मैं लेट था लेकिन मेरे टीचर ने मुझे नहीं डांटा। दो आई वॉज लेट बट मत लगाना, मत लगना। ओके, हालांकि मैं लेट था, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा देना। ओके, हालांकि मैं लेट था, मेरे टीचर ने मुझे नहीं डांटा। माई टीचर नहीं, मुझे नहीं डांटा। मुझे नहीं डांटा, पास्ट में चला गया। दो आई वॉज लेट, मेरे टीचर ने मुझे नहीं डांटा। माई टीचर डिडंट स्कोल्ड मी, पास्ट में चलेगा, नहीं लगेगा। हाँ, डिडंट स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड मी। हालांकि मैं लेट था, दो आई वॉज लेट, माई टीचर डिडंट स्कोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे नहीं डांटा। इस तरीके से आपको सारे के सारे सेंटेंस क्लियर। हाँ, क्लियर। आगे मूव करते हैं। वही तो मैं कहना चाहता था, वही तो हाउ, वही तो दैट्स व्हाट वही तो मैं कहना चाहता था, That's what आई वांटेड टू से। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, दैट्स व्हाट मैं कहना वही तो मैं कहना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। स्पीक मतलब मेरे लिए बोलना होता है। आई स्पोक कहने के लिए से का यूज होता है। ओके, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू, सॉरी आई वुड लाइक टू से। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से, मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू। क्लियर है ना? चलिए आगे मूव करते हैं। वही तो मैं खाना चाहता हूँ, व्हाई दैट्स व्हाट आई वांट टू ईट। अटकना नहीं है यार, दैट्स व्हाट बोलकर शांत हो जाते हो। दैट्स व्हाट आई वांट टू ईट, वही तो मैं खाना चाहता हूँ। वही तो मैं जाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू गो। वही तो मैं दैट्स वेयर आई वांट टू गो। दैट्स वेयर आई वांट टू गो। दैट्स वेयर आई वांट टू गो। वही तो मैं खेलना चाहता हूँ, दैट्स वेयर आई वांट टू प्ले। दैट्स वेयर आई वांट टू प्ले। वही तो मैं डांस करना चाहता हूँ, दैट्स वेयर आई वांट टू डांस। ओके, तभी तो मैं निकला, तभी तो मैं निकला। व्हेन, दैट्स व्हेन, दैट्स निकलना मतलब लीव, तो आई लिव्ड, लेफ्ट। तभी तो मैंने टीवी देखा, देखा, दैट्स मैंने टीवी देखा। दैट्स व्हेन आई वॉच्ड, दैट्स व्हेन आई वॉच्ड टीवी। वॉच टीवी। तभी तो मैंने पढ़ाई की, दैट्स व्हाट, कम ऑन, तभी तो मैंने पढ़ाई की। दैट्स व्हेन मैंने पढ़ाई की। आई स्टडीड, दैट्स व्हेन आई स्टडीड। इज दैट क्लियर? हाँ। चलिए आगे मूव करते हैं। उन्हीं को तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं को मतलब दैट्स हु। हाँ, इसका भी यूज कर सकते हो, मतलब उसी इंसान को, उसी को तो मैं पढ़ा रहा हूँ। दैट्स होम, उसी को पढ़ा रहा हूँ। उसी को तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ही इज टीचिंग, दैट्स होम, उसी को तो मैं पढ़ा रहा हूँ। दैट्स होम, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, तो अब टीचिंग बस खत्म। अरे दैट्स होम मतलब हो गया उसी को, हाँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। दैट्स होम आई एम टीचिंग, दैट्स होम आई एम टीचिंग। उसी को तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी को तो मैं डांट रहा था। दैट्स होम मैं डांट रहा था। आई वॉज स्कोल्ड, उसी को तो मैं गाली दे रहा था। दैट्स होम आई वॉज, क्या बोलते हैं, गाली, स्कोल्ड, सॉरी गाली, अब्यूजिंग। दैट्स होम आई वॉज अब्यूजिंग। क्लियर हो गया? इसीलिए तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ। दैट्स वाई आई सीखता हूँ। आई लर्न, दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश, सीखता हूँ। वही तो लगा। अच्छा, पास्ट में अच्छा लगा। इसीलिए तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ। दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश। इसीलिए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। दैट्स व्हाट, इसीलिए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। दैट्स वाई आई रिकॉर्ड द वीडियो। दैट्स वाई आई, अच्छे से प्रैक्टिस करना सही, इसमें लड़खड़ा। दैट्स वाई आई रिकॉर्ड द वीडियो। इसीलिए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। दैट्स वाई आई रिकॉर्ड द वीडियो। ओके, इसीलिए तो मैं गाना गाता हूँ। दैट्स वाई आई गाना गाता हूँ। या गाने को क्या बोलते हैं? गाने को सॉन्ग ही बोलते हैं। आई बोलने को, गाना गाने को क्या बोलते हैं? सिंग। आई सिंग। क्यों दिक्कत इस बात क्या है, नॉलेज तो आ गई, हाँ। इसका यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। यूज बनता है, वो थोड़ा ध्यान ही नहीं आ रहा था कि जहाँ पर बेर आता है कि अचानक कोई ना कोई वर्ड आ जाता है और आपके बाइट से गायब हो जाता है। हाँ, दो कारण एकदम से। क्या? एक ही कारण है,
क्या है क्या? प्रैक्टिस सॉरी 3 है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इसकी करते ठीक हैं। है ना। तो जितने ज़्यादा वर्ड्स को यूज करोगे, स्पेशली घर अपने यही ला के बोलोगे, बेटर तरीका। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं है। पहले नॉलेज की प्रॉब्लम थी, अब नॉलेज की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, जब knowledge यहाँ तो पर है। आप ट्रांसलेट कर सकते हो तो घर पे भी बोल सकते हो, तो बोलो। प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है। यहाँ नहीं तो पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगी, उसमें क्या है? हाँ? अरे यहाँ मतलब उस माइंडसेट में है। हम्म? एक वो बंदा जिससे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, वो ट्राई करता है बोलने की, और एक वो बंदा जिसके पास नॉलेज होती है ना, वो भी try नहीं बोल पाता। बोलता ही नहीं। वो जब बनता ही नहीं तो क्या बोलेगा? क्या आपसे नहीं बनेगा? मैं से बनेगा ना, मैं से क्यों नहीं बनेगा? तुम घर पे बोलते हो क्या? इंग्लिश? नहीं बोलता। तो और तो मेरे को क्या पता क्या? क्यों नहीं बोलते? कोई मेरे घर में जानता ही नहीं कि क्या क्या बोलूँगा। प्रॉब्लम। तो फिर सीख क्यों रहे हो? क्योंकि सीखने के बाद अगर यूज नहीं किया तो भूल जाएगा। अरे तो मैं स्कूल में बोलूँगा ना, स्कूल में सब जानते हैं, फिर पढ़ाई होगी मेरे से बनती है। फॉरगेट अबाउट पढ़ाई, मेक श्योर कि आप घर पे इंग्लिश बोलना चालू कर दो, और अगर ये नहीं बोलते तो खाना पीना बंद। इंग्लिश नहीं बोलते समझ में नहीं आता। सिंपली अगर आप लोग समझ जाओगे ना कैसे भी करके, हम समझ जाएंगे, मम्मी नहीं समझी, पापा नहीं समझी। ओके, उनको तो छोड़ दो। ओके, हाँ, भैया help कर देंगे। बोले ना, भैया या। जिससे नॉलेज हो उसको। तो अगर नहीं बोलोगे घर पे भैया से इंग्लिश, तो खाना पीना बंद, कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए भाई, आगे मूव करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, इसी तरह तो हम इंग्लिश बोलते हैं। इसी तरह दैट्स वाई, दैट्स हाउ। सर जी क्या बात करते हो? इसी तरह ना हाउ हो जाएगा। That's how दैट्स we हाउ speak English. वी स्पीक इंग्लिश। इसी तरह तो हम तैरते हैं। दैट्स हाउ वी स्विम। दैट्स हाउ वी स्विम। इसी तरह तो हम दौड़ते हैं। दैट्स हाउ वी रन। वी रन। इसी तरह तो हम खाना खाते दैट्स हैं। हाउ वी ईट फूड। क्लियर ना? हाँ। इस तरीके से सारी की सारी की प्रैक्टिस करना है। आई होप इन दिस वे इफ यू प्रैक्टिस इट्स गोना बी इजी फॉर यू। हाँ। ओके, मेक श्योर सर स्कूल में मौका मिलो बोलो, कहीं पर भी मौका मिलो, जो इंग्लिश के उसके पास नॉलेज है बोलो। ओके, खुद से बोलते रहो। अगर कोई नहीं बोला तो खुद से बोलना चालू कर दो। बट दैट देन यू हैव टू स्टार्ट दिस, आपको चालू करना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे until unless you speak everything everything will be forgotten। सब कुछ भूल जाएगा। क्लियर? So thank you very much. I hope that's all. That's enough for today. Thank you very much. Stop works. Just a minute. Okay, thank you very much, Stoppers, for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be Unstoppable. be Unstoppable. be Unstoppable. I am Unstoppable. I am Unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. Thank you very much.